Hello dear children, class 10 children of CBSE board studying Information Technology 402 as their sixth subject. This video is coming just at the right time for all of you under Victory for Board series. Tomorrow is your IIT exam and I am coming up in this video with another practice question paper, solved practice question paper strictly on CBSE pattern of 25 marks. Fine. So let's get into the video without wasting any time. पार्ट एक पेपर मैंने इसका बच्चा और अपलोड किया था अभी रिसेंटली. आई होप आपने उसको देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा है तो ये दोनों पेपर्स आप सॉल्व करें. दे आर गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू ऑल ऑफ यू. This is just a practice question paper. I'm not saying that these are the questions that are going to be asked in your exams, but yes, these are going to prepare you to sit for your exams, to sit for your exam that is falling tomorrow. Fine. So मेरी बेस्ट विशेस के साथ शुरू करते हैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2 फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट. सो लेट्स क्विकली हैव अ रीकैप ऑफ द जनरल इंस्ट्रक्शंस. उससे पहले 1 आवर का पेपर होगा बच्चा, 25 मार्क्स का होगा. टर्म 1 ऑलरेडी 25 मार्क्स का हो चुका है. सो अब बारी है टर्म 2 की. जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन पेपर में देयर विल बी 3 सेक्शंस. Okay, section A, B and C. Section A will be of 5 marks. It is going to have 6 questions on employability skills. 5 marks का employability skills बच्चा. ठीक, इसमें 2 sets हैं questions के बच्चा. Question number 1 to 4 they will be 1 mark questions. Attempt any 3 questions from there. So this is going to fetch you 3 marks. Okay, question numbers 5 and 6 will be 2 marks questions. And you have to attempt any one question out of these 2. So this is going to be of 2 marks. Fine. तो 3 plus 2 आपका हो गया ये 5 marks का. ठीक, section A. Let's move to section B children. Section B is of 12 marks. It has 12 questions on subject specific skills. Fine. 12 marks का 12 questions subject specific skills जो कि remaining 20 marks की आएगी बच्चा. सेक्शन बी में वो 12 मार्क्स की पूछी जाएगी जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 to 12 ये टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे. 1 मार्क ईच कैरी करेंगे. एंड आउट ऑफ दीज 6 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस. फाइन. सो 1 मार्कर्स हो गए 4 मार्क्स के. ठीक. क्वेश्चन नंबर 13 to 18 अगेन 6 क्वेश्चंस होंगे. 2 marks each carry करेंगे and you have to attempt any 4 out of them. So 2 marks के 4 questions that would mean 8 marks. So 8 plus 4 this is going to get you 12 marks. Section B, take 12 marks. Then section C is of 8 marks and it has 3 competency based questions. यानी situation based questions होंगे. 8 marks का section होगा. 3 questions होंगे. ठीक. 19 to 21 numbering होगी. Each question will carry 4 marks. Fine. And out of these 3 you have to attempt any 2. Fine. So any 2 मतलब 4 marks each के according 8 marks हो जाएगा बच्चा. So 12 plus 8 20 plus 5 25 marks आपका ये बच्चा कैरी करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस. फाइन. और आपको इंस्ट्रक्शंस हर सेक्शन के साथ गिवन होगी, उसे आप फॉलो कीजिए. और मार्क्स भी हर सेक्शन में सेक्शन वाइज भी और क्वेश्चन वाइज भी मेंशन्ड होगा. ठीक. सो आई एम श्योर ये चीजें तो आपको अब तक बिल्कुल टिप्स पर होंगी बट स्टिल रिविजन बनता था. तो बिगिन करते हैं सेक्शन ए से जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर होगा बच्चा. 3 plus 2 5 मार्क्स कैरी करेगा. इसमें लेते हैं 4 क्वेश्चंस आपको गिवन है, उसमें से कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं. ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क. फाइन. तो देखो, अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन who is always trying to make his or her business better by taking risks and trying new ideas is an dash. इसका आंसर है entrepreneur. फाइन. एक सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वेज एम्प्लॉयड ना होके सैलरीड पर्सन ना होके सेल्फ एम्प्लॉयड है जो अपने बिजनेस को लगातार बेटर बनाने की कोशिश करते हैं और रिस्क उठाते हैं, न्यू इनोवेटिव आइडियाज को लेकर आते हैं. So that is what defines an entrepreneur. ठीक. 1 मार्क मिलेगा आपको इसके लिए. आप ठीक फिलअप लिखते हो. ठीक. Then dash means a product or service that people want
फाइन। 1 मार्क में आपसे पूछा, इसका आंसर है बच्चे डिमांड। ये भी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स से हैं। 2 क्वेश्चंस एंटरप्रेन्योरियल से हैं बच्चा 1 मार्क के, 2 ग्रीन स्किल्स से हैं। सो डिमांड मीन्स अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट, 1 मार्क। ठीक, देन ग्रीन स्किल से देखते हैं क्या पूछा। आइडेंटिफाई द टर्म reuse discarded objects or material in such a way as to create a product of higher quality or value than the original। एक प्रोडक्ट को रीयूज करें इस तरीके से कि उससे एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बने, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपसाइकल। फाइन, अपसाइकलिंग इज यू नो मेकिंग reusing a product in such a way that it becomes better. Fine, it becomes, its quality increases, it becomes better. Fine, so this is upcycling and this is going to get you 1 mark. Fine, green skill से देखते हैं next 1 mark क्या है। When and where, ठीक, when and where were the sustainable development goals launched? Fine, कब, कहाँ, मतलब कब और कहाँ लॉन्च हुए। देखो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs वर लॉन्च्ड इन सितंबर 2015 एट यूनाइटेड नेशंस। फाइन, ये तो हो गया व्हेन सितंबर 2015 कहां पर, एट यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यूयॉर्क। फाइन, सो दोनों चीजें आ गई, कहां हुआ, वेयर, ठीक, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में हुआ और सितंबर 2015 में लॉन्च हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रीन स्किल्स का SDGs। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड thoroughly with it because most likely you will be getting one question from this part. फाइन, सो अगर आप करेक्ट मंथ और ईयर लिखते हो तो आपको आएगा बच्चा हाफ मार्क 1 में से, और अगर आप करेक्ट प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों में से कोई एक भी लिख देते हो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट समिट, दोनों बोर्ड पे डिपेंड करेगा, दोनों को कंबाइन लेता है तो हाफ मार्क बच्चा। ठीक, सो दिस इज हाफ प्लस हाफ, इट्स गोइंग टू फेच यू 1 mark. So these were the 4 1 markers out of which you had to answer any 3. Let's move to the next questions. And next 2 questions out of which you have to attempt any one. Short answer type है, पहले वाले very short थे बच्चा, ये दो मार्क्स कैरी करेंगे बट 2 में से 1 करना है। अब एक क्वेश्चन इसमें होगा एंटरप्रेन्योरियल से, एक होगा इसमें ग्रीन स्किल से। ठीक, सो देखते हैं एंटरप्रेन्योरियल में क्या पूछा। राइट टू मिसकंसेप्शंस और मिथ्स, 2, ठीक, मिसकंसेप्शंस और मिथ्स, एक फॉल्स बिलीफ एसोसिएटेड विद एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप से एसोसिएटेड सोसाइटी में या लोगों के मन में क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं, उनको 2 आपको लिस्ट करने हैं। 4 आपकी बुक में गिवन है बच्चा, और 4 के 4 मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, कोई 2 आपको ठीक से याद होने चाहिए। So 2 misconceptions or myths associated with entrepreneurship are: every business idea needs to be unique or special. ठीक, इट्स नॉट पॉसिबल, इतने सारे बिजनेस आइडियाज आप कहाँ से लाओगे, है ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा एक यूनिक आइडिया के साथ ही या स्पेशल आइडिया के साथ ही मार्केट में आना चाहिए। फाइन, ही और शी कैन टेक एन आइडिया दैट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट एंड डू समथिंग डिफरेंट विद इट। उसी को इनोवेटिव तरीके से या नए तरीके से भी लाया जा सकता है, एग्जिस्टिंग आइडिया को भी। तो ये एक मिथ है कि सारे आइडियाज जो है वो यूनिक या स्पेशल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट मिथ है, अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमनली बिलीव्ड मिथ है कि एक पर्सन के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, डिपेंडिंग अपॉन many people who started from scratch with very little money. We have the example of श्री धीरूभाई अंबानी जी, जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। ठीक, ये छोटे से humble beginning से बचा। ठीक, so depending upon how much money you have or you can borrow, right? You can start a business with that much money. थोड़े से अमाउंट से स्टार्ट कीजिए और आइडिया शुड बी गुड एंड यू शुड बी हार्ड वर्किंग टू अकम्प्लिश दैट आइडिया। वंस यू मेक मोर मनी, ठीक, जब आपको प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, देन यू कैन पुट दैट इनटू योर बिजनेस टू मेक इट बिगर, देन यू कैन ग्रो योर बिजनेस। फाइन, ये एक मिथ था। थर्ड मिथ देखते हैं क्या है। ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक, एट टाइम्स होता है कि एक फैमिली बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन आगे लेके जाती है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन आगे लेके जाती है, ओके दैट्स ओके फाइन, बट ऐसा नहीं है कि हर कोई एक फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाता है। एक बहुत बड़े बिजनेस मैन को ही हम कहेंगे कि वो एक एंटरप्रेन्योर है।
ठीक, नो बिजनेस इज बिग और स्मॉल, ठीक है ना. यू हैव so many startups these days, so many people turning their passion into a small scale business that when receive that when it receives the love of people, acceptance from people, it grows. Fine. So कोई भी business छोटा बड़ा नहीं होता. If a person is running a business to fulfill a customer need, they are an entrepreneur. आप एक कस्टमर की नीड पूरी कर रहे हैं अगर आप आपके बिजनेस के थ्रू, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं. मोस्ट बिजनेसेस स्टार्ट स्मॉल एंड दे बिकम बिग विद हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी, ठीक है ना. सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं. एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड. ठीक, बाई बर्थ से ही सब एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बाद में नहीं. एक वो कहते हैं कि इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप बाद में नहीं बन सकते. दैट्स नॉट ट्रू. देयर आर मेनी एग्जांपल्स वेयर पीपल हैव लेफ्ट देयर जॉब्स and started their own businesses with very innovative ideas, and they have gone places as a result of their hard work. Fine. So sometimes we think that only some people have the talent for doing business. ठीक है ना, कुछ ही लोगों के अंदर ये टैलेंट होता है. नो डाउट इट्स देयर. यू नीड टू हैव सर्टेन क्वालिटीज इन ऑर्डर टू बी एन एंटरप्रेन्योर, बट देन एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु डज व्हाटएवर इट टेक्स टू मेक द बिजनेस सक्सेसफुल. ठीक है ना, मेहनत से, रिस्क टेकिंग से, है ना. एक एंटरप्रेन्योर हर कोशिश करेगा कि वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाए. ठीक, ही और शी मस्ट बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल एंड इट शैल बी अचीव्ड. फाइन. जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आप एग्जाम्स दे रहे हो, आपने ये कह देना कि 25 on 25 लाने हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, नो. until unless you will prepare with that vigor, you will prepare with that, you will work hard and prepare for those 25 marks thoroughly, है ना. तो कोई भी चीज अचीव करी जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेटेजी होती है, उसके लिए एक प्लानिंग होती है, और उसके लिए सिंसियर एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं. फाइन. So that same applies to entrepreneurship also. So it starts with thinking of an idea that he or she wants to work on and making it different. Fine. You have a lot of competitors. So what is that inside you that is going to make you stand apart from everyone? तो वो आपको मेहनत करनी होती है उस चीज के लिए. सो एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड. ये ट्रू नहीं है. मेहनत से और एफर्ट से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. ठीक. सो ये 2 मिथ्स थे बेटा, पूछे थे 4 में से. आप कोई भी एनी 2 करेक्ट पॉइंट्स अगर आप ठीक लिखते हो तो आपको 1 मार्क ईच के हिसाब से 2 मार्क्स इसमें मिलेंगे. देखते हैं सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, विच इज फ्रॉम ग्रीन स्किल्स. राइट 2 मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फाइन. सो 2 मेजर प्रॉब्लम्स पूछे, 3 आपकी बुक में, मैंने तीनों मेंशन कर दी हैं. जल्दी से देखते हैं. 2 major problems related to sustainable development are food. पहला, इसमें लिखा है कि amount of rich fertile land needed to grow crops such as wheat, rice, etc. is becoming less as we are using up more and more land for other purposes. ठीक है ना. Soil nutrients are also getting depleted and lots of chemicals are spoiling the soil due to use of केमिकल फर्टिलाइजर्स. सो फूड की वजह से, मतलब हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, हार्मफुल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, जिससे सॉइल क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है. फाइन. और रिच फर्टाइल लैंड जिसके थ्रू जिस पर क्रॉप्स उगाए जाते थे, उस पर डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं. ठीक है ना. वेस्ट डंप हो रहा है. इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास बेटर क्वालिटी लैंड जो है वो कम हो रहा है. जो फूड के लिए यूज होना चाहिए था वो अदर पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है. सो दिस इज वन प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट, इट्स वाटर. वी यूज फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग, बट वी डंप गार्बेज इनटू देम. सो वाटर पॉल्यूशन. ठीक है ना. फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है, गार्बेज है, ह्यूमन बींग्स है, सब पानी में गार्बेज डंप कर देते हैं बच्चे, जिससे रिवर्स और जो पॉन्ड्स हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, दे आर गेटिंग पोल्यूटेड. दिस वे आफ्टर सेवरल ईयर्स, कुछ सालों की बात है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि अपने लिए नहीं सोचना, अपने साथ साथ अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी सोचना. ठीक. सो अगर आप इस तरीके से वाटर को गार्बेज से भर देंगे, है ना, पोल्यूट कर देंगे, सो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ सालों बाद पीने के लिए पानी, क्लीन वाटर रहेगा ही नहीं. So this is again a very major problem related to sustainable development. Last is fuel.
We are using a lot of wood from trees as fuels and for construction of homes and furnitures. आप देख रहे हो डिफॉरेस्टेशन, है ना, मेजर थ्रेट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. ट्रीज की वुड ली जा रही है फ्यूल्स के लिए, घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए. एज मोर एंड मोर ट्रीज आर बीइंग कट, इट इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. ऑब्वियस सी बात है ना. दे आर कोरिलेटेड. देन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सच एज फ्लड्स. ठीक, पेड़ मिट्टी को बांध के रखते हैं बच्चा, ठंडक देते हैं. अगर आप पेड़ काट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो पहाड़ों की मिट्टी, आपने देखा कितनी कैलामिटीज होती हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से. ठीक है ना. और उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट, या समर्स के टाइम पता चला हेल स्टॉर्म्स आ रहे हैं जिसमें ओले गिर रहे हैं. दैट इज ऑल लाइक क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस. Why are they happening? Because we are not taking care of our natural reserves. जो हमारे trees हैं, हम उनका ख्याल नहीं रख रहे, काटने में लगे हुए हैं, डेवलपमेंट में लगे हुए हैं. So this is seen in many places which affect the people living there. So we have to stop all this because these are major problems related to sustainable development. If we will not become alert now, not only they are going to get depleted for us, they are going to get deteriorated for us, but our future generations are going to suffer all the more. तो ये आप ध्यान रखना इस चीज़ को. जनरल आंसर था, आए तो आपको कोई 2 पॉइंट्स देने हैं और अब 2 ठीक पॉइंट्स के लिए आपको 1 मार्क ईच मिलेगा. एंड दिस अगेन इज गोइंग टू बी ऑफ 2 मार्क्स. सो दिस फिनिशेस सेक्शन ए. फाइन. आई होप आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगा होगा. आई हैव ट्राइड नॉट टू रिपीट एनी क्वेश्चन. फाइन. सेक्शन बी पर आते हैं बच्चे, जो अब सब्जेक्ट स्किल से आ जाएगा. 12 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं. पहले जो 1 मार्कर्स हैं, 6 गिवन होंगे. 3 वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से, 3 RDBMS से, और आपको इनमें से कोई 4 करने होंगे. ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क. सो जल्दी से देख लेते हैं इसको. वेरी शॉर्ट टाइप क्या पूछा है. नेम द टर्म गिवन टू फाइल्स दैट आर क्रिएटेड ऑन योर लोकल कंप्यूटर व्हेन यू विजिट वेबसाइट्स. एंड द आंसर इज कुकीज. स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स, when you visit a website, they are brought along with the response and they get stored on your local computer. They are cookies. Fine. They store our personal information and the information, our location information, and according to this information and our preferences also, and according to it, it customizes our future visits. Fine. Next is Dash is an accessibility feature that is designed to help users with auditory impairments, ear related, है ना, by generating visual warnings such as blinking title bar or a flashing border whenever the computer generates a sound. Important accessibility options, बहुत ज़्यादा important है बच्चा. इसका आंसर है साउंड सेंट्री. फाइन. साउंड सेंट्री ये accessibility feature है इसका. 1 मार्क आपको इन दोनों के लिए अलग अलग से मिलेगा. Next is Dash is an unplanned event that may happen all of a sudden and it may lead to unwanted or unprecedented results or outcomes. अचानक से कुछ ऐसा चीज हो जाए जिसके थ्रू आपको unwanted बिल्कुल भी pleasant results ना मिले. That is an accident. Fine. ठीक. अब 3 questions हो गए आपके वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से 1 मार्क के. देखते हैं RDBMS से क्या पूछा है. Manan is creating an order table. ऑर्डर टेबल बना रहे हैं डेटाबेस में टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ ऑर्डर्स ही रिसीव्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स. फाइन. विच ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस डेटा टाइप ही शुड यूज टू स्टोर द डेट एंड टाइम ऑफ द ऑर्डर टुगेदर. डेट टाइम बच्चा एक साथ स्टोर करना है अपने टेबल की एक गिवन फील्ड में. उसका आंसर है टाइम स्टैम्प. डेट टाइम ऐसे लिख देना, टाइम स्टैम्प लिखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डेट टाइम डेटा टाइप है, डेट/टाइम स्क्वायर ब्रैकेट्स में टाइम स्टैम्प. बिल्कुल जैसे ओपन ऑफिस बेस की विंडो में फील्ड्स पर जब आप डेटा टाइप के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हो जिस तरह से आता है, मैंने वैसे ही लिखा है बच्चा. ठीक. तो ये आपका टाइम स्टैम्प. खाली डेट नहीं स्टोर करनी, खाली टाइम नहीं स्टोर करना, दोनों को एक साथ स्टोर करना है. तो आप टाइम स्टैम्प लोगे. 1 मार्क फॉर द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. नेम द रिलेशनशिप इन विच बोथ द टेबल्स मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम्स. फाइन. बिल्कुल सिंपल. जब दोनों साइड ही प्राइमरी की कॉलम्स हैं, यानी एक टेबल की एग्जैक्टली एक मैचिंग एंट्री दूसरे टेबल में होगी और वाइस वर्सा भी ये ट्रू होगा. सच अ रिलेशनशिप इज नोन एज 1-to-1 रिलेशनशिप. फाइन. जहां दोनों टेबल्स में प्राइमरी की कॉलम्स होते हैं.
नेक्स्ट, डैश मीन्स दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया का मतलब कंडीशन टू यू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड प्रेजेंट ओनली व्हाट यू वांट टू सी। ठीक है ना, फिल्टर करके डेटा दिखाना है, किसी कंडीशन पर बेस्ड टेबल में से सारा डेटा नहीं दिखाना, जो दिखाना है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दिखाना है, जो नहीं दिखाना उसे हिडन रखना है। एंड द टर्म गिवन टू दिस इज फिल्टरिंग। फाइन, फिल्टरिंग। फाइन बच्चा, सो ये 1 मार्कर्स आपके RDBMS के भी कंप्लीट हो गए, 1 मार्क ईच के 3 क्वेश्चन। तो टोटल 6 में से आपको 4 करने थे। लेट्स मूव टू द सेकेंड दिस थिंग पार्ट ऑफ सेक्शन बी इन विच देर आर 6 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 4 करने हैं। ईच क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी 2 मार्क्स। सो 8 मार्क्स में देखते हैं क्या पूछा है। इन 6 में से भी ऐसे होगा, शुरू के 3 आपके होंगे यूनिट 4 से और बाद के 3 RDBMS से। सो राइट 4 की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बच्चा। इंस्टेंट मैसेजिंग देखते हैं। इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस ओवर इंटरनेट। सो टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंड टू 1 or more पर्सन सिमिलर टू SMS। बिल्कुल करेक्ट है, एक से ज्यादा लोगों को भी भेजा जा सकता है लाइक SMS। यू हैव द फीचर ऑफ ऑडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Fine, you have the feature of video calling or video conferencing. You have the feature of transferring files, which is not just limited to documents, but you can even multimedia data है ना, आप spreadsheets, audio, video किसी भी तरीके की फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं using instant messaging. And then you have message history, that is you can save messages for future reference. So these are the 5 features of instant messaging, out of which you have to write any 4 and half mark each you will get for writing any 4 correct points, making it up to 2 marks. Next question, what is Wi-Fi and gives 2 situations where it is preferably used. Wi-Fi क्या होता है बच्चा? It stands for wireless fidelity. It's a popular, ये wireless internet connectivity method है, a popular technology that allows any electronic device such as your computers, your laptops, your mobile phones to exchange data वायरलेसली, है ना, फिजिकली बाउंड ना होकर एक जगह से वायरलेसली आप डेटा एक्सचेंज कर सकते हो। एंड इट इंक्लूड्स हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस। फाइन, ये होगी वाईफाई की डेफिनेशन, ये आपको 1 मार्क दिलाएगी। और किन 2 सिचुएशंस में आप वाईफाई को प्रेफर करेंगे वो देखिए। इट इज यूज्ड एट प्लेसेस वेयर केबल्स कैन नॉट बी रन, जहाँ फिजिकल लेइंग ऑफ केबल्स इज नॉट फीजिबल, सच एज ओल्ड बिल्डिंग्स हो गए, आउटडोर एरियाज हो गए, हिली एरियाज हो गए बच्चा, जहाँ पर फिजिकल लेइंग ऑफ द केबल्स इज नॉट फीजिबल, वहां पर इंटरनेट एक्सेस या नेट एक्सेस देने के लिए आप वाईफाई यूज करोगे। ठीक, Wi-Fi can also be used where users require mobile connectivity. While on the move, you need internet. Then also Wi-Fi is going to mobile connectivity. आप चाहते हो कि भाई आप मूव करते करते भी नेटवर्क को एक्सेस कर सको, इंटरनेट को एक्सेस कर सको. So that is also one of the situations where a user would prefer Wi-Fi or which is a wireless internet connectivity method over a wired internet connectivity method. So for each of these 2 situations, you will get half mark each. This is going to make up 1 mark. 1 plus 1, this question is going to fetch you 2 marks. Next question पे बढ़ते हैं बच्चा. Define first aid. Give any 2 rules of first aid. देखो, first aid is the immediate assistance provided to the injured to save life and minimize health loss till proper medical aid facility is provided. Aid or facility is provided. Obviously सब जानते हैं. Before you can get a proper, आप अपने डॉक्टर्स के थ्रू मेडिकल एड प्रोवाइड करा सकें, इंस्टेंटली कुछ भी इशू होने पर, हेल्थ रिलेटेड, एक्सीडेंटल इशू, एनी इशू, इंजर्ड पर्सन को जो इमीडिएटली आप असिस्टेंस देते हो, सो दैट लाइफ कैन बी सेव और ज़्यादा हेल्थ का नुकसान ना हो ज़्यादा, है ना, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? दैट हेल्प इज नोन एज फर्स्ट एड. सबसे पहले दिए जाने वाली एड यानी कि हेल्प, दैट इज फर्स्ट एड. 2 रूल्स ऑफ फर्स्ट एड आर, 2 रूल्स पूछे ना बच्चा. एश्योर द इंजर्ड टू रिमेन काम एंड नॉट टू पैनिक. फाइन, सबसे पहले काम कराना होता है. जो पर्सन घायल होता है या जिन पर्सन की तबीयत अचानक से खराब होती है, उनको सबसे पहले आपको रिलैक्स कराना होता है. उन्हें बोलना होता है आप ठीक हो जाओगे, आप पैनिक मत करो, जस्ट रिलैक्स. फाइन, कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक. ऑब्वियसली बात है, अगर शॉक में है तो उनको वार्मथ दीजिए.
फाइन। और थर्ड पॉइंट है, डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक और नेक इंजरी। मूवमेंट वहीं कीजिए जहां इंजरी इस तरीके की मूवमेंट हो सकता है। अदरवाइज बैक इंजरी हुआ है, नेक इंजरी हुआ है, मूव मत कीजिए जब तक डॉक्टर्स ना पहुंच जाए। फाइन। सो दीज आर एनी टू रूल्स, इफ यू राइट दे आर गोइंग टू गेट यू हाफ मार्क ईच and giving it, summing up to 1 mark, and for defining first aid you are going to get 1 mark. So this is going to get you 2 marks. Fine. So ये थे 3 questions आपके किस में बचे, यूनिट 4 वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी के 2 मार्कर्स। अब देखते हैं आरडीबीएमएस के 2 मार्कर्स क्या है। मैंने थोड़ा डिफरेंट लिया है इस बार, टेबल डिजाइन व्यू और टेबल डेटा व्यू के बीच का डिफरेंस देना है। देखो मैंने तीनों ही डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं, थोड़ा चेंज करते हुए पैटर्न को। देखो टेबल डिजाइन व्यू क्या होती है, जब आप डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हो इन टेबल डिजाइन व्यू, तो जो विंडो खुलता है जिसमें आप अपना नया टेबल बनाते हो बाय स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग थिंग्स फॉर ईच फील्ड ऑफ योर टेबल। फाइन। फील्ड का नाम देते हो, फील्ड का डेटा टाइप देते हो, फील्ड की प्रॉपर्टीज बताते हो और ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन। ये 4 चीजें बच्चा आप याद रखना। You mention for each field the name, the data type, the properties and the optional description, जिसमें नेम और डेटा टाइप देना बेहद जरूरी है। प्रॉपर्टीज अगर आप ना सेट करो तो डिफॉल्ट चल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन ना भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टेबल क्रिएट करके सेव करने के बाद, मतलब आप प्राइमरी की भी सेट करते हो यहीं से, उसके बाद अगर आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टेबल स्ट्रक्चर को ऑल्टर करना चाहो तो भी टेबल डिजाइन व्यू में जाकर ही वो ऑल्टर होता है। आप टेबल्स सेक्शन में राइट क्लिक करके एडिट कीजिए और आपका टेबल डिजाइन व्यू में वो टेबल ओपन हो जाता है। इसका डिटेल्ड वीडियो बेटा चैनल पर है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। फाइन। टेबल डेटा व्यू, टेबल डेटा व्यू जिसे कॉमनली डेटा शीट व्यू नाम से भी पूछ सकते हैं वैसे, लेकिन जो ओपन ऑफिस एक्सेस बेस की जो विंडो आती है उसकी हेडिंग, उसका टाइटल टेबल डेटा व्यू होता है। बट डेटा शीट व्यू भी अगर आ गया तो घबराना मत, ठीक, मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। ये वो टेबल व्यू है जिसके अंदर टेबल बनने के बाद, जब आपने डिजाइन व्यू में टेबल क्रिएट कर लिया उसके बाद आप इसमें रिकॉर्ड्स एंटर करते हो, नए रिकॉर्ड्स को एंटर करते हो और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को किसी भी तरह से आप मॉडिफाई करना चाहो, पर्टिकुलर फील्ड को या ज्यादा फील्ड्स को मॉडिफाई करना चाहो या कंप्लीट रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहो, आप यहाँ से कर सकते हो। सॉर्टिंग भी अलाउड होती है यहाँ पर। सो टेबल डेटा व्यू में बेसिकली यू आर एबल टू वर्क विद द कंटेंट्स ऑफ द टेबल, एंड टेबल डिजाइन व्यू में यू विल बी एबल टू वर्क विद द टेबल स्ट्रक्चर। सो 2 marks फॉर द करेक्ट डिफरेंस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अगेन एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, देखते हैं। प्राइमरी की बचा क्या है। प्राइमरी की इज अ फील्ड और अ सेट ऑफ फील्ड्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, है ना। ये रिकॉर्ड यूनिकनेस के लिए होती है। हर एक सिंपल प्राइमरी की हो सकती है या कॉम्पोजिट प्राइमरी की हो सकती है। अगर ज्यादा मतलब एक से ज्यादा फील्ड्स के कॉम्बिनेशन को, 2 या 2 से ज्यादा के कॉम्बिनेशन को अगर आप प्राइमरी की बनाते हो, इट इज गोइंग टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। फाइन। फॉरेन की क्या होता है बच्चे। फॉरेन की इज अ कॉलम इन और अ सेट ऑफ कॉलम्स इन वन टेबल, जिसे हम बोलते हैं रेफरेंसिंग टेबल, ठीक, दैट रेफर्स टू द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अनदर टेबल, जिसे हम कहते हैं रेफरेंस्ड टेबल। सो अगर एक टेबल की प्राइमरी की को आप दूसरे टेबल में कॉलम बनाते हो तो दूसरे टेबल में वो क्या कहलाती है, फॉरेन की। तो जो फॉरेन की वाला जो टेबल है वो जो आपका फॉरेन की वाला टेबल है वो रेफरेंसिंग टेबल कहलाएगा, और जो आपका जिसको वो रेफर कर रहा है, जिसके अंदर से वो प्राइमरी की को पिक कर रहा है, वो रेफरेंस्ड टेबल कहलाएगा। ठीक, फॉरेन की वाला चाइल्ड और प्राइमरी की वाला पेरेंट। फाइन, ठीक है। ध्यान रखना, हो सकता है मैं फंबल कर गई हूँ। रेफरेंसिंग टेबल कौन सा होता है, जिसमें फॉरेन की होती है क्योंकि वो रेफर कर रहा है, और जिसे वो रेफर कर रहा है वो रेफरेंस्ड टेबल होता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी की को रेफर करता है। फाइन। प्राइमरी कीज मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। प्राइमरी की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो उसकी वैल्यूज यूनिक होती हैं और उसकी वैल्यू कभी भी नल कंटेन नहीं कर सकती, यानी यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट होता है। फॉरेन की का कॉलम नल वैल्यूज कंटेन कर सकता है, वैल्यूज की डुप्लीकेसी भी अलाउड है, लेकिन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहती है कि फॉरेन की के कॉलम में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो जिस टेबल की प्राइमरी की को वो रिफर कर रहा है उससे मैच ना हो, ठीक है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया प्राइमरी की और फॉरेन की का डिफरेंस। इसका भी डिटेल्ड वीडियो चैनल पर है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। अब आप देखिए नेक्स्ट बचा, राइट डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेरकैर डेटा टाइप। कैर एंड वेरकैर डेटा टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे एक मिनट बच्चों, हाँ
देखो कैर जो है फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग्स बनाने के काम आता है. इट स्टोर्स अप टू द मैक्सिमम लेंथ और साइज गिवन बाय द यूजर. जैसे आपने एक फील्ड बनाई नेम कैर 15, ठीक, कैर डेटा टाइप दिया. सो वो किस तरीके से स्टोर करेगा, 15 स्पेसेस बचा वो रिजर्व कर देगा, 5 स्पेसेस अलॉट हो गई, ठीक. बाकी की जो 10 स्पेसेस हैं बचा वो ट्रेलिंग स्पेसेस से, शॉर्टर स्ट्रिंग्स जो होगी उनमें ट्रेलिंग स्पेसेस आ जाएगी. तो जितना आपने यहाँ पे साइज मेंशन किया है उतना ही स्टोर करेगा वो, जितना आपने कंटेंट डाला है उसके बाद बची हुई जगह शॉर्टर स्ट्रिंग्स के लिए स्पेसेस से पैड कर दी जाएंगी. सो ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी नहीं करेगा क्योंकि शॉर्टर स्ट्रिंग्स के केस में मेमोरी वेस्ट होगी. varchar वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स के लिए होता है. सो इट स्टोर्स अप टू द लेंथ ऑफ द डेटा गिवन बाय द यूजर. ये लेंथ ऑफ द साइज गिवन, मतलब साइज गिवन बाय द यूजर था, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ डेटा गिवन बाय द यूजर. सो नेम varchar 15 लेंथ का अगर आपने कॉलम बनाया बट अगर आपने उसमें नंबर स्टोर किया तो वो 5 कैरेक्टर्स ही लेगा, ठीक. और बाकी के 10 रिलीज हो जाएंगे, कोई ट्रेलिंग स्पेसेस से पैडिंग नहीं होगी और मेमोरी का भी बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इसको ध्यान से करना और इसी तरीके से आंसर अटेम्प्ट करना. नेक्स्ट सेक्शन सी पे आ गए हम, लास्ट सेक्शन जिसमें हमारे 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. पहले 2 यूनिट 4 से हैं और लास्ट वाला आरडीबीएमएस से है. ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, लेकिन 3 में से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है. इंटरनेट हैज बिकम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. हम इंटरनेट के बिना अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते बच्चे, वो हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट हो चुका है. वाइल द इंटरनेट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशंस, ठीक, its conveniences and uses come at the price of new perils. इसके साथ कुछ खतरे भी आते हैं, है ना. तो प्रोज एंड कॉन्स है. तो प्रोज तो ये हो गया कि हमारी लाइफ को स्मूथ कर दिया, रेवोल्यूशनाइज कर दिया, द वे वी कम्युनिकेट, द वे वी वर्क. बट देन ऑब्वियसली कॉन्स भी हैं. कॉन्स में देखो, विदाउट एनी ऑनलाइन डिफेंस, अगर आपने कोई सिक्योरिटी नहीं ली हुई, you leave yourself open to be a victim of various online threats and their associated damage. So बहुत सारे ऑनलाइन थ्रेट्स आप वल्नरेबल हो जाते हो उसके लिए अगर आपने प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो नहीं किया, ठीक. इस ओपनिंग पैराग्राफ के साथ अब देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है. यू आर सिमरन, अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट. यू हैव टू प्रेजेंट अ सेमिनार ऑन इंटरनेट सिक्योरिटी इन अ स्कूल. आप सिमरन है, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आपको एक सेमिनार देना है इंटरनेट सिक्योरिटी के ऊपर एक स्कूल में. हाउ विल यू प्रेजेंट द फॉलोइंग थिंग्स टू द स्कूल स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड मैनेजमेंट. अब देखते हैं आप कैसे प्रेजेंट करोगे. द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, पहली चीज, ठीक. 2 ऑनलाइन थ्रेट्स, कैसे उनको कैसे नेम करोगे. and 2 internet security practices that can be used to reduce the risk of falling a prey to the various online threats. ठीक. सो पहले देखते हैं आंसर ए क्या है. इंटरनेट सिक्योरिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे. इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंटरनेट, ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राउजर सिक्योरिटी बट ऑल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी. ठीक है ना, 2 फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, ब्राउजर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी. Its objective is to establish rules and measures. क्या रूल्स और मेजर्स आप लगाओगे जिन्हें आप यूज करोगे अगेंस्ट अटैक्स ओवर इंटरनेट. तो साइबर अटैक्स से साइबर स्पेस में आप कैसे बचोगे, ठीक, वो रूल्स और मेजर्स को एस्टैब्लिश करती है इंटरनेट सिक्योरिटी. ये कंप्यूटर सिक्योरिटी की एक ब्रांच है. फाइन, 1 मार्क मिलेगा आपको करेक्ट डेफिनेशन के. अब 2 ऑनलाइन थ्रेट्स आप बता सकते हो, फिशिंग एंड ईमेल स्पूफिंग और चैट स्पूफिंग. बिल्कुल आपकी बुक से ही मैंने पिक किए हैं, कोई 3 नाम आप याद कर लो, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग, फिशिंग, ये आप कर सकते हो, ठीक. मैलवेयर अटैक, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक. सी पार्ट, ये हाफ मार्क ईच मिलेगा आपको फॉर ईच करेक्ट थ्रेट नेम. देन सी, आपसे पूछा गया 2 इंटरनेट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस बताइए दैट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉलिंग अ प्रे टू द वेरियस ऑनलाइन थ्रेट्स. सो क्या 2 इंटरनेट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं बच्चा, मैं आपको बता देती हूँ. आपकी बुक में पेज नंबर 195 से पेज नंबर 199 तक बहुत सारी प्रैक्टिस इंटरनेट सिक्योरिटी वो दी हुई हैं बच्चे, इंटरनेट सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस दी हुई हैं. मैंने इनमें से सिर्फ 2 पिक करी हैं. आपको ये आपको उनकी थरो रीडिंग लेनी है क्योंकि आप से 4 पूछ ली तो, है ना, तो आपको आनी चाहिए. तो पहली 2 मैंने जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने लिखी, यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर.
तो स्पाईवेयर से बचने के लिए और वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। So, उसमें डिस्क्रिप्शन है, कंप्यूटर्स आर प्रोन टू अटैक्स फ्रॉम सॉफ्टवेयर नोन एज मैलवेयर्स, जो मैल फंक्शनिंग करते हैं, मैलवेयर है ना, जो मैल फंक्शन कर दे, दैट कुड हार्म योर कंप्यूटर। सो मैलवेयर ट्रैक ब्राउजिंग बिहेवियर, आपका ब्राउजिंग बिहेवियर और ट्रैक करता है और आपके पर्सनल डेटा को ट्रांसमिट कर देता है फ्रॉम योर कंप्यूटर। So antivirus, anti-spyware programs offer real-time protection, है ना, आपको ऑनलाइन रियल टाइम प्रोटेक्शन देते हैं। They monitor your computer for any changes by malware software. So आपके कंप्यूटर को मॉनिटर करते हैं कोई malware अटैक तो नहीं हुआ, अगर और उसको सिक्योर करते हैं। So keep बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर लिया है ना, तो उसको आपको हमेशा अप टू डेट उसका अपडेट लेते रहना होगा, सो दैट यू नो रीसेंट थ्रेट्स, कोई नई थ्रेट आती है तो उसके लिए भी वो प्रिपेयर्ड हो, है ना, ऑब्सोलेट ना हो जाए, उनके अपडेट्स आप लेते रहिए। नेक्स्ट इज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं अल्फान्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स को, मतलब अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का, जिनके थ्रू आप पासवर्ड क्रिएट करते हो, विच इज नॉट ईजी टू क्रैक और बी गेस्ड बाई अदर यूजर्स। सो एक ऐसा पासवर्ड जो कोई आसानी से गेस ना कर सके, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक, सो 1 मार्क फॉर एनी 2 करेक्ट पॉइंट। सो ये आपका 4 मार्क्स का पहला सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा। अमित इज अ बिजनेसमैन एंड यूजेस अ डायल अप कनेक्शन टू मीट हिज इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स। फाइन, डायल अप कनेक्शन अमित यूज करते हैं अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस के लिए जो इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट आउट करने के लिए। ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट्स परफॉर्मेंस, है ना, डायल अप स्लो होता है, पैरेलल यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेलीफोन इज नॉट पॉसिबल, ही वांट्स टू रिप्लेस इट विद अ डीएसएल कनेक्शन। अमित ने वायर्ड में ही, डीएसएल और डायल अप दोनों ही वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी मेथड्स हैं आपकी बुक में, तो अमित वांट्स टू स्विच फ्रॉम डीएसएल टू डायल अप टू DSL. He has the following queries. Please help him by answering his following queries. अब आप अमित की क्वेरीज का सोल्यूशन दीजिए। What is DSL? So क्या लिखोगे? DSL, अच्छा, इट इज, मैं इसकी पहले फुल फॉर्म लिखना भूल गई बच्चे, यहाँ लिख देते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सो DSL ब्रैकेट में आप लिख देना डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन लिख के ब्रैकेट में DSL लिख देना। It provides internet access by transmitting digital data over wires of a local telephone network. Fine, local telephone network ही यूज होता है, उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है, डिजिटल डेटा उनकी वायर्स से जाता है, बट DSL सर्विस जो है वो आपके वायर्ड टेलीफोन कनेक्शन के साथ ही आपको सेम टेलीफोन लाइन पर ही मिलती है। ठीक है ना, सो सेम टेलीफोन लाइन पर ही जो आपके घर तक आ रही है, उसी पर आपको DSL कनेक्शन भी मिल जाता है, बेस्ड अपॉन द प्लान दैट यू डिसाइड टू गो फॉर। फाइन, सो इसके लिए आपको मिलेगा DSL ठीक बताने के लिए 1 मार्क। नेक्स्ट पार्ट में पूछते हैं, गिव टू एडवांटेजेस ऑफ अ DSL कनेक्शन ओवर अ डायल अप कनेक्शन। सो DSL का डायल अप के ऊपर क्या कनेक्शन है, सबसे क्या एडवांटेज है बच्चा, जो डायल अप के डिसएडवांटेजेस थे वो DSL के एडवांटेज बन गए, कि साइमल्टेनियस यूज हो सकता है टेलीफोन और इंटरनेट का। ये नहीं कि आप एक टाइम पे टेलीफोन यूज कर पाओगे या इंटरनेट यूज कर पाओगे, जैसे डायल अप में होता था, पैरेलल एक्सेस इज पॉसिबल, देन ऑब्वियसली इट इज मच मच फास्टर देन डायल अप। जो स्लोएस्ट DSL कनेक्शन है वो भी 10 to 20 Mbps तक होते हैं, और सम रीच अप टू 100 Mbps, दिस विल डिपेंड अपॉन योर प्लान। सो हाफ मार्क फॉर ईच करेक्ट पॉइंट, दिस इज गोइंग टू गिव यू 1 मार्क। और फिर इसमें नेक्स्ट सी पार्ट में पूछा है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी मेट टू गेट अ DSL कनेक्शन। ठीक, सो DSL कनेक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स है बच्चा। फॉर यूजिंग अ DSL कनेक्शन वी नीड अ DSL मॉडेम एंड अ सब्सक्रिप्शन। सो 1 मार्क फॉर द करेक्ट आंसर। फाइन, सो आपके किस तरीके से हो गए बेटा इसमें, एक मिनट बच्चा, दिस इज 4 मार्क्स ना, हाँ, तो 1 मार्क आपका पहले वाले का हो गया, इसको आप 2 पॉइंट्स को, सॉरी मैं यहाँ पे 1 मार्क ईच फॉर द करेक्ट पॉइंट, तो ये 2 मार्क्स का हो गया और ये 1 मार्क का, इस तरीके से आएगा बच्चे। 2 मार्क्स के आपको 2 एडवांटेजेस जो आपने बताए, 1 मार्क ईच, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, प्लीज बेयर विद दैट, और 1 मार्क फॉर गिविंग द करेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड 1 मार्क फॉर डिफाइनिंग DSL। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 4 मार्क्स। फाइन, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर 2 का। आई रियली विश आपका पेपर कल बहुत अच्छा हो, सॉलिड हो, बिल्कुल आप पूरे मार्क्स आपके आए। ठीक,
सो कंसिडर द फॉलोइंग टेबल मेंबर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये आना ही आना है बच्चा, क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन. देखो मेंबर टेबल है, मेंबर आईडी है, आप देख पा रहे हो अल्फा न्यूमेरिक है, varchar टाइप की होगी. ठीक, मेंबर नेम varchar टाइप का होगा, एड्रेस varchar टाइप, एज इंटीजर, फीस इंटीजर, फी इंटीजर. तो टोटल हमारे 5 कॉलम्स हैं, देखते हैं. और टोटल हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं. राइट एसक्यूएल कमांड्स टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल मेंबर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली. सो देखो न्यू दिल्ली कौन से कॉलम में स्टोर्ड है? एड्रेस कॉलम में. सो ऑल द डिटेल्स, ऑल मेंबर डिटेल्स यानी सेलेक्ट एस्ट्रिक, सारे कॉलम्स दिखाओ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेंबर, है ना. इससे तो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, बट फिल्टरिंग करनी है ना. हमने पढ़ा, क्वेरी लगाई, वेयर क्लॉज दिया, एड्रेस कॉलम इज इक्वल टू न्यू दिल्ली, सिंगल कोट्स में न्यू दिल्ली, जैसा आपके टेबल में गिवन है वैसा ही लिख दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए. 1 मार्क अगर आप पूरा स्टेटमेंट ठीक करते हो मिलेगा, नहीं तो हाफ मार्क अगर आप सेलेक्ट ठीक देते हो, और या फिर हाफ मार्क अगर आप वेयर क्लॉज ठीक से देते हो तो आपको मिलेगा. लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आई एम कॉन्फिडेंट यू विल गेट 1 मार्क. नेक्स्ट बी पार्ट, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल मेंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज. ठीक, तो उसको 2 तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेंबर, सारे मेंबर्स दिखाने, ऑर्डर बाय क्लॉज लगाओ, ऑर्डर बाय के साथ एज लिख दो. एज कॉलम पर आपको देना है बच्चे, एज का मैं ए कैपिटल कर देती हूँ. वैसे केस सेंसिटिविटी पे मार्क्स कटते नहीं है बोर्ड्स में, मैं एज का ए कैपिटल कर देती हूँ जैसा टेबल में गिवन है. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेंबर, ऑर्डर बाय एज. बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में होती है, तो आपको ASC लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर आप लिखना चाहो तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट होगा. ठीक, सो हाफ मार्क फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट, फुल्ली करेक्ट स्टेटमेंट, हाफ मार्क ओनली फॉर राइटिंग सेलेक्ट और राइटिंग द करेक्ट ऑर्डर बाय क्लॉज, बट आई नो यू विल गेट a 1 marker for it. नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं बच्चा. नेक्स्ट सी पार्ट क्या कहता है? सी पार्ट नीचे चला गया, आते हैं उस तक. डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल मेंबर्स हुज नेम्स बिगिन विद द लेटर N, है ना. तो जैसे 2 मेंबर्स हैं, निशा एंड निहारिका, जिनके नेम्स N से बिगिन होते हैं और एक स्टोर्ड है मेंबर अंडरस्कोर नेम कॉलम में. सो डिटेल्स आपको उन्हीं मेंबर्स की दिखानी है जिनके नेम्स N से स्टार्ट होते हो, कैपिटल N से स्टार्ट होते हो. तो यहाँ देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेंबर, वेयर मेंबर नेम. अब इक्वल टू नहीं लगता क्योंकि आपको पैटर्न मैच करना है ना बेटा. तो लाइक ऑपरेटर लगेगा, लाइक एंड सिंगल कोट्स में इस तरीके से आप लिखोगे, N से स्टार्ट होते हैं, फॉलोड बाय एनी लेटर, 0 और मोर कैरेक्टर्स, परसेंट सिंबल लगा दोगे और सेमीकोलन लगा दोगे. ठीक, सो हाफ मार्क फॉर राइटिंग द करेक्ट स्टेटमेंट एंड हाफ मार्क you will get only if you write select asterisk from member ठीक से, and half mark if you only give the correct use of like operator, but I am confident you're going to get a 1. फिर लास्ट पार्ट इसका क्या कहता है देखते हैं बच्चा. लास्ट पार्ट कहता है टू अपडेट द फी ऑफ मेंबर विद मेंबर आईडी M001 to 2500. सो M001 मेंबर आईडी की जो फीस है वो 2000 है. सो हमें अपडेट करके इस फीस को 2500 करना है. सो हम क्या लिखेंगे? अपडेट मेंबर, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम. किस कॉलम को चेंज करना है? फी. क्या चेंज करना है? इक्वल टू 2500. इतना लिख दोगे तो सारे मेंबर्स की फी 2500 हो जाएगी, बट हमें ऐसा नहीं करना. जहां मेंबर आईडी M001 है वहीं ये चेंज करना है. तो हमने क्या लिखा? वेयर मेंबर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू M001 इन सिंगल कोट्स, क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा है बच्चा. सेमीकोलन लगा दो. ठीक, 1 मार्क फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट. अगर आप खाली अपडेट ठीक देते हो तो हाफ मार्क, और खाली वेयर ठीक देते हो तो हाफ मार्क, बट यू आर गोइंग टू गेट अ 1 mark over here. I'm pretty confident. So this was about बच्चा the practice paper 2, है ना. आई होप आपको ये यूजफुल लगा होगा. आई होप ये आपको बेटर प्रिपेयर करेगा एक प्रैक्टिस के साथ कल के एग्जाम के लिए. विद ऑल माई सिंसियर विशेस, विद ऑल माई ऑनेस्ट विशेस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम्स बच्चा. आई होप आप सब बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे पेपर एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. पॉसिबल हो तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को थोड़ा मुझे मोटिवेट करने के लिए कोई कमेंट दे देना. आप लोग कमेंट्स नहीं देते हो, आई रियली फील वेरी बैड अबाउट इट, बट देन मे बी आई फील कि अभी मुझे और मेहनत करनी है आप लोगों के थ्रू वो कमेंट्स अर्न करने के लिए, वो लाइक्स अर्न करने के लिए. आई नेवर स्टॉप, आई नेवर गिव अप ऑन माई एफर्ट्स चिल्ड्रन. बट एक टीचर का जो प्यार होता है वो पेरेंट की तरह अनकंडीशनल होता है. सो अनकंडीशनल प्यार के साथ मैं आपको ढेर सारी बेस्ट विशेस देती हूँ आपके कल के पेपर के लिए. और मुझे पेपर के बाद प्लीज़ बताना आपका पेपर कैसा हुआ. एंड बहुत अच्छा होगा. कल आपका लास्ट एग्जाम होगा. जिन बच्चों के पास IT है 6 सब्जेक्ट, सो उनको मैं बहुत सारी
हैप्पी लर्निंग विशेस देती हूँ और ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू बोलती हूँ। गॉड ब्लेस यू बच्चा, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, टाइम का ध्यान रखना, 60 मिनट्स का पेपर है, बहुत आराम से विद इन टाइम रिविजन के लिए टाइम बचाते हुए कर लेना। ठीक है बच्चा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।